Greetings of the day to everyone. As we know, education is backbone of a society. It not only helps in development and economic growth, but it leads to a transformatory mindset of a society. Today we are going to discuss a very important scheme launched by the central government for enhancing or for helping out students in the matter of education, or you can directly say for attaining higher education. The scheme is Prime Minister's Vidya Lakshmi scheme. Now let us get into the details of the scheme. Now, talking about this scheme, Union Cabinet has recently approved this scheme. The name of the scheme is Prime Minister's Vidya Lakshmi scheme. Now, as per this scheme, it offers education loans, higher education के लिए loans provide करते हैं. Now, understand it is a completely central sector scheme, so the responsibility, the entire responsibility of the scheme lies with, and the financial burden of the scheme lies with the central government. Now the scheme's name is Vidya Lakshmi. Now understand, ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत वो बच्चे जो हायर एजुकेशन चाहते हैं, वो बच्चे जो हायर एजुकेशन चाहते हैं बट उनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है और हायर एजुकेशन अटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के थ्रू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देंगे. कौन लोन देगा, मैं आपको यहां लिख देता हूं. बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट इस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के लिए, स्कीम के थ्रू. अब किन बच्चों को लोन देगा? जो बच्चे हायर एजुकेशन चाहते हैं बट उनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, तो उनका ड्रीम अधूरा रह जाता है. ओके, नाउ the scheme goal is to empower youth and middle class by easing financial constraints on a higher education. इसके तहत क्या हो जाएगा, जो मिडिल क्लास है वो एम्पावर हो जाएगी. और सी, if a youth of a country gets quality education, अगर एक देश के यूथ को क्वालिटी एजुकेशन मिलता है तो वो क्या कर सकते हैं? अगर क्वालिटी एजुकेशन मिलता है तो वो डेफिनेटली ही विल गेट इनटू एम्प्लॉयमेंट. अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो जीडीपी ऑफ द नेशन एनहांसेस. नॉट ओनली जीडीपी ऑफ द नेशन एनहांसेस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दैट person and the person's family also enhances. So the scheme is providing loans to the students who desires for higher education but there are certain financial constraints, so their dreams does not meet dreams does not meet their desired destiny. So this scheme will help to reach their goals. Now moving further, now there are certain aspects of the scheme. Like, what are the specifications of scheme? Like, for example, a person X is going to get a loan from a financial institution under this scheme. He or she does not have to pay any or give any collateral. Like, अगर आपको कोई मॉर्गेज करने की जरूरत है, फॉर एग्जांपल कभी आपको लैंड के पेपर्स देने पड़ते हैं, हाउस के पेपर्स देने पड़ते हैं, या गोल्ड सबमिट करना पड़ता है, तो मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं है कुछ भी इस स्कीम के तहत लोन लेने के लिए. इट इज कंप्लीटली कोलैटरल फ्री. द सेकेंड थिंग इज यू डोंट नीड एनी गारंटर. आपके लिए कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं. इट इज गारंटर फ्री, कोलैटरल फ्री लोन्स गिवन अंडर दिस स्कीम्स. एंड द स्कीम विल be given by banks and financial institution. banks और financial institution दोनों इस स्कीम के तहत लोन देंगे. एंड वन मोर थिंग, पूरा जो ट्यूशन फीस है, जो भी आपका कोर्स का एंटायर फीस इस स्कीम के तहत मिल जाएगा, और आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भी इस स्कीम के तहत कवर हो जाएंगे. सो द मेजर एस्पेक्ट इज it is a guarantor free scheme, it is a collateral free scheme. The entire tuition fee, entire course fee, everything will be covered. Now इनकम लिमिट क्या होगी? इनकम किसको ये स्कीम मिलेगा? इनकम लिमिट स्टूडेंट्स विद एन एनुअल फैमिली इनकम ऑफ ₹8 लाख. ठीक है, जिस स्टूडेंट के फैमिली इनकम, जो भी हायर एजुकेशन चाहते हैं, अगर उनका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, एंड they will be an eligible for interest subvention of 3% on education loan up to 10 lakh. I'll explain you this. अगर एक बच्चा है जिसका X है वो बच्चा, और इनका फैमिली इनकम एनुअली 8 लाख से कम है, 8 लाख है या 8 लाख से कम है,
तो अगर ये बच्चा 10 लाख का लोन लेने जाता है या 10 लाख या 10 लाख से कम का लोन लेने जाता है तो उनको 3% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रिडक्शन मिल जाएगा इस स्कीम के तहत। क्या मिलेगा, 3% इंटरेस्ट रिडक्शन मिल जाएगा इस स्कीम के तहत। एंड दैट इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या है, दैट इंटरेस्ट won't be taken from the student, that interest will be paid by the government to the banks and the financial institution. ठीक है, preference criteria, priority will be given to the students from government institution pursuing technical and professional courses. नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी स्कीम है, बट ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जो कोर्स ले रहा है, स्पेशली टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेस, उनको ये स्कीम अवेल किया जाएगा, ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। नाउ लेट अस मूव फर्दर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% विल बेनिफिट 1 लाख स्टूडेंट्स एनुअली। जो मैंने बोला ना कि अगर 6% इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है तो गवर्नमेंट 3% देगी एंड आपको थोड़ा रिड्यूस इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा, तो ये इससे 1 लाख स्टूडेंट्स बेनिफिट होंगे। फॉर लोन्स अप टू 7.5 लाख द स्कीम ऑफर्स 75% क्रेडिट गारंटी ऑन आउटस्टैंडिंग डिफॉल्ट, सपोर्टिंग बैंक्स इन प्रोवाइडिंग लोन्स अंडर दिस स्कीम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है एक्स, इसने 7.5 लाख तक का लोन लिया है, 7.5 लाख तक का लोन दिया है। ठीक है, अब इस लोन में कोई भी कोलैटरल नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, पर किसी ना किसी तरीके से या किसी ना किसी वजह से ये बच्चा अपना 7.5 लाख बैंक को रीपे नहीं कर पाया। द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू रीपे 7.5 लाख टू बैंक। तो इस केस में बैंक का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा। उस लॉस को कैसे ओवरकम किया जाएगा? अब क्यों एक बैंक देना चाहेगा 7.5 लाख अगर उसको लगता है कि ये रीपे नहीं कर पाएगा? उस केस में गवर्नमेंट पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के तहत एक गारंटी ऑफर करती है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। वो गारंटी ये है, अगर लोन 7.5 लाख तक है और बच्चा नहीं दे पा रहा है आपको किसी ना किसी वजह से, जो भी अमाउंट उसने लिया है उसका 75% बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहां से भी उस बच्चे ने लोन दिया है, गवर्नमेंट देगा 75%। सो गवर्नमेंट कहता है स्टे एश्योर्ड, खाली 25% का रिस्क है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, 75% गवर्नमेंट देगा। ठीक है, नाउ अब स्कीम स्कोप ऑफ एलिजिबल इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में मतलब बच्चे एनरोल करेंगे तो ये स्कीम के अंडर आ सकते हैं। द पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम इज एप्लीकेबल टू higher quality higher educational institutions which are selected based on national institution ranking framework। ठीक है, तो ये स्कीम किस पे एप्लीकेबल होता है? क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे पता चलेगा कि भाई ये इंस्टीट्यूशन हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है? एक रैंकिंग होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसमें जो टॉप रैंक इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें अगर बच्चा एनरोल होता है तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को यूटिलाइज कर सकता है। अब मैं आपको कुछ क्राइटेरियाज बता देता हूं। टॉप 100 इंस्टीट्यूशन इन नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के टॉप 100 इंस्टीट्यूशन, जो पहले 100 इंस्टीट्यूशंस है, उसमें अगर बच्चा एनरोल करता है तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम आपको मिल जाएगा। सेकेंड, स्टेट गवर्नमेंट रनिंग इंस्टीट्यूशन बिटवीन 101 to 200। अगर इस रैंकिंग में, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में, अगर 101 से लेकर 200 के बीच में कोई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन किया गया इंस्टीट्यूशन है, देखो टॉप 100 तो डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाएगा। अगर 101 से लेकर 200 के बीच में कोई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन किया गया इंस्टीट्यूशन में, तो अगर उसमें बच्चा एनरोल करता है तो उसको भी पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंदर कवर किया जाएगा। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, अगर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में कोई भी रैंक किसी भी सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का हो, कोई भी रैंक हो, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में बच्चा एनरोल करना चाहे तो उसको भी मिल जाएगा। समझने की कोशिश करिए क्या क्या बोल रहा है। क्वालिटी हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ही, मतलब उस इंस्टीट्यूशन में, क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बच्चा एनरोल कर रहा है तो उसको पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंडर कवर किया जाएगा। अगर
नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप 100 इंस्टीट्यूशन, जो भी टॉप 100 इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं उसमें अगर कोई एनरोल कर रहा है तो उसको उस स्कीम के अंदर एग्री करा जाएगा कि दैट यू कैन गेट द फैसिलिटी अवेल्ड अंडर दिस स्कीम। अगर इंस्टीट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट रन है और 101 से लेकर 200 के बीच में आ रहा है, क्योंकि टॉप 100 तो डायरेक्टली क्वालिफाई हो गए, 101 से 200 के बीच में आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन है, तो उसको भी क्वालिफाई करवाया जाएगा। थर्ड, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, उसका कोई भी रैंक हो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में, उसका कोई भी रैंक हो तो उसको भी अवेल किया जाएगा। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड इससे क्या फायदा होगा। इससे 860 इंस्टीट्यूशंस को इस स्कीम के अंदर कवर करा जाएगा। लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स इस स्कीम के तहत बेनिफिटेड होंगे। नाउ एक और बहुत सिंपल चीज है कि application and payment process, student will apply for the education loan and interest subvention through a centralized platform called PM Vidya Lakshmi portal। जो भी आपको एप्लीकेशन करना देना होगा इस स्कीम के तहत जो भी आपको एप्लीकेशन भरना होगा या स्कीम के अवेल करने के लिए एप्लीकेशन भरना होगा या इंटरेस्ट रिडक्शन 3% जो इंटरेस्ट रिडक्शन मांगना है उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करना होगा, वो इस पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के तहत होगा। Portal simplifies the application process, making it easier for the students to apply for the both loan and interest subvention across participating banks। ठीक है, तो जो whatever happens, like application you have to file, or for interest subvention you have to file an application, that will happen through PM Vidya Lakshmi portal, and उसी के तहत जो भी करना होगा, and that simplifies the process। And payment of interest subvention, the interest subvention जो 3% डिस्काउंट है विल बी प्रोवाइडेड थ्रू ई वाउचर्स। जो आपको 3% डिस्काउंट मिल रहा है इंटरेस्ट रेट पे, वो ई वाउचर्स और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के थ्रू मिलेगा। ठीक है, सो एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। ठीक है, सो आई विल सम अप, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम इज अ स्कीम जहां पर बच्चे जो हायर एजुकेशन चाहते हैं बट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो हायर एजुकेशन अटेन नहीं कर पाते हैं, उनको हेल्प करने के लिए ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तहत 10 लाख रुपए 10 लाख रुपीस तक का लोन देंगे बच्चे हायर एजुकेशन में जो जाना चाहते हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कवर करा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को कवर करवाया जाएगा। भारत में लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट होंगे। होप the future of these kids who wanted to meet their dreams, who wanted to achieve their aspirations, who wanted to live their life in a better way, inspires generation to come. That's all for the day. Thank you so much and have a nice day.